Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you here in our channel once again, where today we are going to study a new chapter, Reproduction in Animal. It is important as far as class 8th and class 10th is concerned. You are belongs to any of the board, that is from CBSE or from state board. So let's start with the topic, Reproduction in Animals. So, content of the chapter, first of all, we're going to learn sexual reproduction, male reproductive organ, female reproductive organ, what is fertilization, then external and internal fertilization, test tube baby क्या होता है, reproductive system of different that is male and female frog, then metamorphosis क्या होता है, asexual reproduction, binary fission, budding, viviparous and oviparous क्या होता है, animals there are two kinds of animal, viviparous and oviparous, on the basis of different characteristic that we'll going to learn कि क्या है ये, और डॉली ये पहला दुनिया का क्लोन शीप है, ये क्या था, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड अवर चैनल येट, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें सो दैट ऑल कैन एन्जॉय इट or learn it. Sexual reproduction. Sexual reproduction basically the reproduction with both male reproductive organ and female reproductive organ involved to give birth to a new individual is called sexual reproduction. Getting? एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट से एक नया बर्थ होगा, एक नया जीवन का जन्म होगा जिसको हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग ऑफ दैट, विच इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. जैसे हम देखते हैं प्लांट्स में, वैसे ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और द पार्ट इन एनिमल ऑल्सो हैव गैमेट्स, जिससे हमें क्या मिलता है या जिससे हमें क्या फॉर्म होता है, एक जाइगोट फॉर्म होता है. ठीक है, इट इज अ जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. So how it is used to develop, that we're going to see. First we're going to have a look on male reproductive organ and what are its characteristic. So this is the basic male reproductive organ जो पेपर में अक्सर आता है. If you are appearing for class 8th or if you are giving the exam of class 10th boards, then female reproductive organ and male reproductive organ both are very important, but the most important question the examiner used to ask is the female reproductive organ, but we have to go into or we have to look the male reproductive organ as well. We have different kinds of things out there. See, first is bladder. Public bone is this one, is the public bone. Ductile defense basically it's also as a duct. There are two ducts we have in male reproductive organ and they used to carry sperm with them. Then this is the structure of a penis and the spongy urethra. प्रोस्टेट ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको समझना ज़रूरी इसलिए भी है कि आफ्टर सर्टेन एज आप सुनते होंगे कि कई लोगों का प्रोस्टेट सर्जरी होनी है. प्रोस्टेट सर्जरी बेसिकली ये आपको प्रोसेस जो दिख रहा है यहाँ पे अक्सर ये जो एरिया है ये स्वेल आउट हो जाता है, जिसके कारण ये जो पाइप है, जो ये पाइप दिख रहा है, ये पाइप क्या होता है, चोक हो जाता है. गेटिंग? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए आने वाले समय में क्या होता है, प्रोस्टेट के कई लोगों को क्या करवाना होता है, सर्जरी. सो बी हेल्दी बेटा एंड डू रिमेंबर, आपको हमेशा एक्सरसाइज जरूर करते रहना है. गेटिंग? नाउ दिस इज epididymitis this is, and this is testis. Every human being, every male have two testes with them, और ये testes जो होते हैं they are the main source of generating sperms, और जो duct carry करता है. Getting? This duct, two duct we have. So let's see male reproductive organ. The male reproductive organ includes a pair of testes, that's I have already told you. Two sperm duct जो कैरी करते हैं स्पर्म को, वो टू डक्ट्स आर देयर एंड अ पीनस और पेनिस. द टेस्टिस प्रोड्यूसेस मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म बोलते हैं. मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय अ टेस्टिस. एक टेस्टिस से कई सारे स्पर्म निकलते हैं, दो टेस्टिस हमारे पास और ज़्यादा निकलते हैं. गेटिंग? नाउ दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. वन इज वी हैव द फेलोपियन ट्यूब, बोथ साइड आपको दिख रहा होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल डू रिमेंबर वी हैव टू ओवरीज, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो ओवरी होती है, एक ये है, एक ये है. बोथ कैरी अ फेलोपियन ट्यूब, जहाँ से क्या आता है बेटा, स्पर्म.
गेटिंग, यहाँ से स्पर्म नहीं आता बेसिकली, यहाँ से एग, क्योंकि जो यूटेरस है, ये आपको यूटेरस दिख रहा है, दिस इज द स्पेस ऑफ यूटेरस एंड दिस इज एंडोमेट्रियम, दिस शेप इज एंडोमेट्रियम, दिस इज योर वेजाइना एंड दिस इज द कर्विक्स। गेटिंग, सर्विक्स भी लोग बोलते हैं बट इट इज बेसिकली कर्विक्स। दिस फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट। गेटिंग, डू रिमेंबर इट। नाउ the female reproductive organs are of ovaries, two ovaries we have, ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट वही जो मैंने बताया फेलोपियन ट्यूब्स एंड अ यूटेरस। जो ओवरी होता है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट जिसको हम ओवा कहते हैं या एग्स कहते हैं। अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट बाय अ सिंगल बायन ऑन द ओवरीज एवरी मंथ। यूटेरस इज द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूटेरस में क्या होता है, बेबी का जो एंटायर डेवलपमेंट होता है वो यूटेरस में टेक्स प्लेस होता है। लाइक द स्पर्म एन एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल्ड थिंग। गेटिंग, दिस इज व्हाट ह्यूमन ओवम, ह्यूमन ओवम मतलब ओवा, ओवा का प्यूरल फॉर्म ओवम होता है, अभी बताया था। ठीक है, ओवा क्या है, एग है। दिस इज हाउ एन एग यूज टू लुक लाइक। ईच ओवरी, एक ओवरी एक एग जनरेट करती है, दो ओवरी है हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एज अ डायग्राम ऑफ द ओवम। दिस इज अ न्यूक्लियस एट द सेंटर, दिस इज साइटोप्लाज्म जो अंदर आपको दिख रहा है, साइटोप्लाज्म में डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो ये आजू बाजू जो स्ट्रक्चर बाहर दिख रहा है, दिस इज नोन एज फॉलिसाइल सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। बेसिकली क्या करेंगे अभी हम देखेंगे कि एक जब स्पर्म आता है इसमें स्ट्राइक ऑन करता है और इनमें जो पूरा का पूरा जो ओवम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पर्म एक बार में स्ट्राइक कर पाता है। तभी हम बोलते हैं कि अब वो जो एग है वो फर्टिलाइज्ड हुआ है। अगर कोई भी स्पर्म इसमें एंटर नहीं करेगा तो फर्टिलाइजर नहीं हो पाता है। गेटिंग, इट इज अ नीड। और एक ओ जैसे ही एक स्पर्म अंदर जाएगा, बाकी की जो बाउंड्री होता है वो इतना ज़्यादा इम्परमेबल हो जाता है कि उसके अंदर फिर दूसरा कभी भी स्पर्म एंटर नहीं होगा। वाई? बिकॉज एक ही स्पर्म जब एंटर होगा एंड दिस इट मीट्स विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ अ मेल, न्यूक्लियस ऑफ फीमेल, व्हेन एंटायर दे यूज्ड टू मेट, तब हम बोलते हैं इट इज फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड। गेटिंग, कैसे होता है, क्या होता है, दैट विल गोइंग टू सी लेटर, देखते हैं। एंड ओवम, प्यूरल फॉर्म होता है ओवा का, प्यूरल इज ओवा। ओवियम मीनिंग एग और सेल और एग सेल इज अ हैप्लॉइड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में गैमेट बोल देते हैं। बोथ एनिमल्स एंड एम्ब्रियोफाइट्स हैव ओवा, दोनों में होते हैं। द टर्म ओव्यूल इज यूज्ड फॉर अ यंग ओवम ऑफ एन एनिमल। एनिमल के ओवम को, यंग ओवम को ओव्यूल कहते हैं। एज वेल एज द प्लांट स्ट्रक्चर that carries the female gametophyte and egg cell and develops into a seed after fertilization. Now what all these things telling about, that we'll going to see. ओवम हमने देख लिया, अब हम देखते हैं स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म पहली बार ऑब्जर्व किया था 1676 में एटॉनी वेन लीवेनहॉक के द्वारा। किस थ्रू? वाया माइक्रोस्कोप। द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, अभी बताया था। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, और बहुत सारे होते हैं। ईच हैज हेड, मिडिल पीस, नेक भी होता है, एंड अ टेल, और टेल बहुत लंबी होती है। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। दैट, आपको एक मूवी याद होगी, थ्री इडियट्स, उसमें सबसे स्टार्टिंग में बोलता है करोड़ों स्पर्म्स लड़के एक स्पर्म्स एग में टकराता है एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ लाइफ। गेटिंग, बहुत सारे स्पर्म्स एक बार में लड़ते हैं का मतलब है सब उसमें कैसे करेंगे, दैट विल गोइंग टू सी। दिस इज द शेप ऑफ अ स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म बेसिकली। सबसे ऊपर दिख रहा है एक्रोसोम, जिसे हम हेड वाला पोर्शन में ऊपर दिख रहा है। देन नीचे आएंगे नेक, नेक के बाद बीच में दिया मिड पीस, देन द लास्ट वन इज टेल। टेल जो होती है वो कभी भी ओवा के अंदर नहीं जाती है, डू रिमेंबर दिस। हम देखेंगे ऊपर का हेड जो पार्ट होता है वो बस अंदर जा पाता है, द नेक पार्ट, दैट इज द मिडिल पीस। नाउ दिस इज हाउ, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपका ओवा दिख रहा है, दिस इज ऑल ओवा, ये उसका बाहर का स्ट्रक्चर है। दिस इज वन स्पर्म गेटिंग इनसाइड इट। ऐसे कई सारे स्पर्म यहाँ लाइन से आपको टकराते हुए दिखेंगे, एक ही सक्सेस पाता है और अंदर जा पाता है। Sperm fertilizing a female egg. This is how it is written there. That we're going to see. Fertilization. The first step is the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. जब दोनों मिलेंगे तब हम fertilization का पहला step complete होता है. When sperm comes in contact with an egg, one of the sperm, मैंने बोला millions of the sperm used to release, but उसमें से एक ही sperm may fuse the egg. May fuse, कर सकता है, कर नहीं भी सकता है, depends.
सच फ्यूजन्स ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इसे ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। गेटिंग? नाउ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे होता है, तो मैंने अभी आपको बताया फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। द मेल एंड द फीमेल gametes are released from the male and the female reproductive organ, that is male reproductive organ and the female reproductive organ. Male reproductive organ, that is by a testy through ducts sperm रिलीज होता है, और फ्रॉम फीमेल ओवरी से फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब आपका एग आता है। गेटिंग? अभी हमने पढ़ा दैट इज द पीनस organ. Sperms of the male gametes are released from the male reproductive organ, that is the penis. These sperms then enter the female body through a vagina. Then they travels through a fallopian tube, अभी देखा था हमने, where they meet the egg, वहाँ वो egg में मिलेंगे। Hence the process of fertilization takes place in the fallopian tubes only. fallopian tube में हम देखते हैं process of fertilization takes place होता है। क्या होता है? human egg cell plus sperm दोनों मिलेंगे और फाइनली क्या बनता है? fertilized human embryo. During fertilization, the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse. स्टार्टिंग वाला जो हमने देखा था वो और जो एग है दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ईच अदर टू फॉर्म द जाइगोट। दिस जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रायो। अभी हम देखेंगे जाइगोट क्या होगा, ये एम्ब्रायो बनाएगा विच इन टर्न्स डेवलप इनटू अ फ्यूटस, और फाइनली जो शेप ऑफ द बॉडी आता है वो फ्यूटस में कहलाता है। क्या है देख लेते हैं। दिस इज हाउ द होल प्रोसेस यूज्ड टू बी डन। मैंने बोला था बहुत सारे स्पर्म देखो डायरेक्ट टकराने की कोशिश कर रहे हैं, एक को क्या मिली? जीत मिली, वो अंदर चला गया। ओनली वन स्पर्म रीचेस द एग, अंदर गया। इसकी जो टेल है यहीं रह जाएगी, जो स्टार्टिंग का हेड था वो अंदर चला जाएगा। जोना पेल्यूसाइड बोलते हैं इस पर्टिकुलर शेप को। देयर इज फॉलिसाइल सेल्स जो बाहर बहुत सारे दिख रहे हैं। दीज आर द स्पर्म्स। गेटिंग? नाउ सी दिस इज हाउ दे यूज्ड टू मीट। आपने देखा, मैंने कहा था फीमेल न्यूक्लियस इज हियर, मेल न्यूक्लियस जो आगे का पार्ट है वो चला गया। कई सारे स्पर्म स्टिल दे आर ट्राइंग टू गेट इनसाइड, बट ये अब जो बाहर की आपकी बॉडी दिख रही है नाउ जोना पेल्यूसाइड, अब ये कैसी बन गई? इम्परमिसेबल टू अदर स्पर्म्स। इनपरमिसेबल का मतलब अब इसमें कोई और स्पर्म अंदर नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक जा चुका है और उसकी टेलें बाहर है। देखो स्पर्म टेल लेफ्ट आउटसाइड द ओवम। गेटिंग? दिस इज हाउ द होल प्रोसेस टू बी डन। कैसे क्या होता है देख लेते हैं एक बार। दीज आर द स्पर्म्स। स्पर्म्स फर्टिलाइज्ड एग में इंटर्ड होने की कोशिश कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई एंड दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। दैट्स ओनली आई हैव सेड। गेटिंग? These are the fertilized egg fallopian tubes. Fertilized egg यहाँ पे आ जाएगा, then यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी ऑफ व्हाट? फर्टिलाइजेशन की। हम बोला था ना बॉडी ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम यूटेरस। यूटेरस में ही हम देखेंगे बेबी डेवलपमेंट टेक्स प्लेस होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखो द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल्स में आप देखते हो, ह्यूमन बॉडी में आप देखते हो। बट द फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फ्रॉग के बारे में हम देखते हैं, फिश, स्टार फिश, ये बाहर करता है पूरा प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मतलब जो एग्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो मिलते हैं वो बॉडी पार्ट के बाहर मिलते हैं। कैसे? विद द नेचर। जाइगोट का फॉर्मेशन देख लेते हैं। जाइगोट बेसिकली होता कैसा है? जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, जहाँ पे फीमेल और मेल गैमेट मिल जाते हैं और न्यूक्लियस फॉर्म कर देते हैं, वही जाइगोट कहलाता है। अ जाइगोट इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ टू गैमेट्स, दैट इज द and constitute the first stage in the unique organism development. Zygote are usually produced by a fertilization event between two haploid cell. दो हैप्लॉइड सेल के मिलने से बनता है अ ओवम, जिसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं, ना स्पर्म सेल्स मेल गैमेट जिसे कहते हैं, विच कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल डिप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। सच जाइगोट कंटेन डीएनए, जिसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है? बोथ पेरेंट्स का डीएनए उसमें होगा, जो बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। आपके बच्चे में जेनेटिकली वो मेल और फीमेल दोनों को, जो मदर और फादर है दोनों के गुण आते हैं ना, तो वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? इट इज इन द डीएनए। गेटिंग? नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट फिर से हम देख लेते हैं। सेम डायग्राम इज अगेन द हैव द मेल साइटोप्लाज्म अंदर है, दिस इज अ फीमेल गैमेट, दिस इज अ मेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिल गए, मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड फाइनली वी गॉट द जाइगोट। फर्टिलाइजेशन हो गया। गेटिंग? नाउ वी सी डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है ये फॉर्म हो गया, फीमेल मेल गैमेट मिले, उसके बाद आपका जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड। नाउ टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? इन सम वीमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। ओविडक्ट क्या बताया था? फेलोपियन ट्यूब, वो ब्लॉक होते हैं। तो एग और
जो आपका स्पर्म होता है वो अंदर जा नहीं पाता है, एग बाहर नहीं आ पाता, तो हम मीट नहीं होंगे. दीज वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन. इन सच केसेस, इन केसेस में डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म एंड कीप दैम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स. कुछ देर तक उसे साथ में रखते हैं, इसे IVF कहते हैं. ठीक है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल. इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स, द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूटरस, जिसमें कि बेबी का डेवलपमेंट टेक्स प्लेस होगा. कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटरस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक अदर बेबीज. बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है. IVF बहुत फेमस है अभी. इज अ प्रोसेस बाय विच एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म आउटसाइड द वॉर्म. ठीक है. इन वाइट्रो, इसलिए उसे IVF कहते हैं, इन वाइट्रो. नाउ एम्ब्रियो क्या था, तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिन टू डेवलप इनटू एम्ब्रॉय. एम्ब्रॉय क्या है बेसिकली, अब वो जो एग है, जो जाइगोट है, जो दोनों न्यूक्लियस में ने, अब वो थक्का बनेगा. बॉडी जिससे शेप, जैसे आप देखते हो आटा आपके पास होता है, फिर आटा बनाने के बाद अब उसके अलग अलग शेप बना सकते हो, लाइक गणेश जी, कुछ भी, कोई भगवान चित्र कुछ भी बनाते हैं. वैसे ही एक आटे का शेप ना होगा, बॉडी जिसकी बनेगी वो एक थक्का जो होता है वो आपका एक साथ फॉर्म हो जाता है बीच में, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो. जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव्स राइज टू अ balls of cell. वही कंबाइन हो गए. द सेल्स then begin to form group that develops into different tissues and organs of the body. This development structure is termed as embryo. The embryo gets embedded in the walls of uterus for development. Getting एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखो, डे 1 आपको एक शेप, फिर उससे कई 2 सेल बने, कई सारे सेल, मिलियंस ऑफ सेल बनते जाएंगे एंड फाइनली आप देखो 5th डे में आप देखो बॉडी का शेप दिखने लगा. लेकिन अभी हाथ पैर नहीं निकले हैं, सिर्फ बॉडी का शेप दिख रहा है, क्योंकि हाथ पैर फ्यूटस में होगा. सी डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो वीक 1. पहले हफ्ते क्या होता है देखो, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जाइगोट बना, जाइगोट से आगे गए मोर्यूला, देन ब्लास्टोसिस्ट बन गया. दैन विल सी व्हाट इज फ्यूटस. फ्यूटस में जो एग्जैक्ट बॉडी शेप होता है, हाथ पैर, ठीक है, आँख कान नाक, ये सारी चीज़ बनती है, वो किस में, यूटरस के अंदर ही बनेगा. इट इज़ अ फ्यूटस. द स्टेज एम्ब्रियो in which all the body parts can be seen is called fetus. Getting? Now this is the female frog and the male frog structure. frog के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. frog जब आप क्लास 11th में आएंगे तो frog को काट के दिखाते हैं. काट के मतलब आप ही काटेंगे and you'll see the observe the inner body structure of the frog. क्योंकि frog और इंसान का बहुत सारा पार्ट सिमिलर होता है. That's why this is the female frog, this is the male frog. आप दोनों की शेप देखो, फैट बॉडीज. इधर क्या होता है, थम आपको दिख रहा होगा. नाउ ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, इसमें भी होता है. वीना कावा, इसमें भी है. ओवरी इज ऑल्सो देयर. एंड्रिनल ग्लैंड है, किडनी है, यूटरस है, एंड क्लोका इज ऑल्सो देयर. दिस नाउ वन वी सी थम पैड इज देयर. फैट बॉडीज, then वर्ना केवा, then वीना केवा, टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, वेस्ट्रिनल ओविडक्ट एंड द क्लॉ. ठीक है. दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल फ्रॉग. नाउ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग अगर देखें, एडल्ट फ्रॉग से आपने देखा कई सारे एग्स से आपने देखा टेडपोल बना, टेडपोल से फ्रॉगलेट, फ्रॉगलेट से अगेन एडल्ट फ्रॉग. दिस लाइफ स्पैन. दिस मैंने भी बताया था, बाहर आउटसाइड द प्रोसेस, जहाँ पे आउटसाइड एग निकाले जाते हैं, आउटसाइड जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है फ्रॉग में होता है. दिस इज द जेली लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट एन एग एंड दिस इज द फीमेल फ्रॉग. ठीक है. ये क्या कर रहा है, फीमेल फ्रॉग सिटिंग ऑन द मास ऑफ इट्स ओन स्पॉन. स्पॉन का मतलब होता है बहुत सारे जेली लाइक स्ट्रक्चर में डॉटेड दिख रहे हैं, दीज आर द एग्स. गेटिंग? ये पानी में ही करते हैं, और तालाब में, छोटे कम पानी में जो रुका हुआ होता है, बहुत तेज स्ट्रीम नहीं होती, उधर. यहाँ मेल भी आएगा. Then we'll going to see reproduction in frog during spring or rainy season. Frogs and toads, that is female, move to ponds and flow or slow flowing stream. When the male and female come together in water, the female lays 100 of eggs. A layer of jelly holds the eggs together and provides protection of the egg. ठीक है, जिसमें यहाँ वहाँ ना हो. As the egg are laid, egg आ गए, the male deposits sperm over them. Male उसके ऊपर सबके sperms आ जाएंगे. Each sperm swims randomly in the water with the help of its long tail. The sperm contact with the egg, this result in fertilization. जैसे ये sperm egg से contact में आएगा तो आप बोलोगे भाई egg तो बहुत सारे आ सकते हैं.
एक एग या कई एग से बहुत सारे स्पर्म्स भी मिल सकते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं एनिमल लay hundreds of egg and release millions of sperm. All the egg do not get fertilized. This is because the egg get exposed in water movement, wind and rainfall. Also there are other animals in pond जो इससे जिंदा होते हैं इनको खा के, मतलब वो ये खाते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिसिस क्या होता है? मेटामॉर्फिसिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ लार्वा इनटू एन एडल्ट। एडल्ट में जो लार्वा जनरेट होती है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिस। दिस इन्वॉल्व्स रिलेटिवली सडन एंड एब्रप्ट चेंज इन द एनिमल्स स्ट्रक्चर। जैसे फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स आर एन एग्जांपल ऑफ द और ऑर्गेनिज्म शोइंग मेटामॉर्फिसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है कि मेल और फीमेल गेमेट एक साथ मर्ज हो, एक ही बॉडी से आप देखोगे रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गेमेट। इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट एंड the offspring produced the exact copy or replica of their parents. Getting binary fission जैसे इसका example है, it is a type of asexual reproduction in which a single cell divides into two halves. खुद जो होता है एक सेल वो दो हाफ में टूट जाता है, एक उसका ऑफस्प्रिंग हो गया और एक वो खुद हो गया। Now, organisms that reproduces through binary fission are bacteria and amoeba. In amoeba, the division of cells takes or can take place in any plane. It involves the division of its nucleus into two nuclei, which is followed by the division of its body into two halves. Each half of the body receives a nucleus. दोनों में एक एक न्यूक्लियस आ जाता है। इन इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? बाइनरी फिजन। फिजन मतलब अलग अलग होना। बर्डिंग इज अनदर प्रोसेस, एक ही के अंदर जो दूसरा जनरेट हो जाता है फिर अलग हो जाएगा जब डेवलप हो जाएगा। बर्डिंग इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द bulges known as buds formed on the parent body. This method of reproduction is commonly in Hydra. Hydra, the cell divides repeatedly at a specific site and develop as an outgrowth called the bud. बाजू में जो निकला है उसे हम bud कहते हैं। नीचे डायग्राम में दिख रहा होगा। These buds, while being attached to the parent plant, develop into a smaller individual. When these individual becomes mature enough, ये खुद से अलग हो जाते हैं, मतलब उससे detach हो जाएंगे from the parent body and becomes independent individual. Getting? This is nothing but a budding. Now, oviparous animals and viviparous animal. Oviparous animal जैसे मैंने अभी बताया frog lizard, जो egg क्या करते हैं outside their body lay करते हैं। Animal which lay eggs outside their body are called oviparous animals. जैसे सारे के सारे पक्षी होते हैं, frogs, lizards, crocodiles etc. इस ग्रुप में आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं viviparous, ये वो एनिमल होते हैं जो खुद बर्थ देते हैं किसी यंग वन को, मतलब अपने ऑफस्प्रिंग को, which give birth to young ones are known as viviparous. जैसे लॉइंस, टाइगर्स, डॉग्स, सारे के सारे ह्यूमन इसी ग्रुप में आते हैं। Now we'll see Dolly, the clone. पहला क्लोन था। Dolly was the first cloned mammal and is genetically identical to its parent sheep. Cloning is creating an exact copy of biological entity. A clone is created by inserting the complete genetic material of a regular body cell from a donor into a recipient. Sheep आर viviparous. viviparous मतलब जो क्या करते हैं, अंदर खुद एक नए बेबी को जन्म देते हैं, एनिमल, एंड सो प्रोपोगेट देयर ऑफस्प्रिंग सेक्सुअली। सर लेन विलमट फ्रॉम रोसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड क्रिएटेड दिस डॉली। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का पहला क्लोन बफेलो भारत में बनाया गया। Scientists at India's National Dairy Research Institute in the Indian state of Haryana produced the first cloned buffalo back in February 6, 2008 using DNA from the ear of an adult female. Through unfortunately it died of pneumonia soon after its birth. मरने के बाद कुछ समय बाद इसकी डेथ भी हो गई थी। ये पहला हमने क्लोन बफेलो बनाया था, दुनिया का पहला था। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, बट दैन टू इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी डायरेक्ट मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।